ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। एक रिएक्शन राजा मुनीब जी के पास भी मैं चल रहा हूँ। राजा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं आज जो कुछ भी हुआ, पुअर, बोरिंग, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं सर? जो कांग्रेस पर जो स्पोक्स पर्सन है उनकी मेंटालिटी दर्शाती है कांग्रेस पार्टी की मेंटालिटी। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि जो प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने बोला है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है। जिस हिसाब से आपसे बात कर रही थी और जिस तरह इन्होंने आपसे जो वर्ड्स यूज किए वो गलत थे। गूंगे बहरे, ये इनकी लैंग्वेज है, ये इनका तरीका है बात करने का लोगों से। इनकी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है जो इनको लगता है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सिर्फ इनके पास है और किसी के पास नहीं है, और वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इनसे छीन चुकी है। जहां तक बात करते हैं, देखें, राहुल गांधी जी ने बोला बोरिंग है, वो कोई थिएटर या सिनेमा देखने तो गए नहीं थे जहां उनको मूवी देखनी थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट को, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, प्रियंका, if you want to explain what poor thing means, we know what it means and how it is used, right? I do know, and that's what I'm coming to. So let me explain that to you. The president of India is not a poor thing. And let me tell you who's a poor thing, and you don't even comment on that. Your party chief, who's 82 years old man, who's almost, at times collapsing on the stage because of ill health, doing long rallies for you on election and Bharat Jodo Yatra, and you don't utter a word of sympathy or empathy for him. That's a poor man. I really, really feel for that poor man the way you are milking him for your own party. So you should have some courtesy and some think about your own party president. And second of all, let me come back to you now. दूसरी चीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये सब पूरी डिजर्व करती है कि पूरा रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, जनता जनार्दन से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। What is you cannot call a president of India she's a poor thing. She's not a poor thing. She's on a constitutional post. You cannot be sympathetic towards her. What did you want? You wanted a what is the meaning? You want to know the meaning? You don't know what poor thing. What is the meaning of poor thing means? I sympathize with you. Okay. Why don't you just listen? Tell me the Hindi meaning. What is this meaning? I'm telling you the English meaning because you came with said people of India, BJP, and nobody knows English. I'm asking the Hindi meaning. Poor thing का मतलब ये है कि मेरे को आपसे बड़ी ये हो रही है. I am coming to it. Why you are not answering? I am answering. Why are you speaking on top of me? I'm answering. You're telling everything you are wrong. Your party is wrong. Your leader is wrong. Really, I'm wrong. You're not able to answer what is the meaning. See the same thing applies to your president of the party. He's also a poor thing. Why don't you utter that word for him? Disrespect. Can you explain it? How is it disrespect? Is it not a disrespect? Is it not a disrespect? You are telling President of India that you are a poor thing. I'm not willing thing का मतलब क्या होता है? But one thing I would You're like not willing to fight me. You cannot fight me because you know I'm talking from facts. And we are not doing respect. It is disrespect. I am sorry. The whole poor thing party. You know the problem. I'll tell you the problem with Congress. The problem with Congress is that Congress has reduced itself to a poor thing. The whole party. और आप 2 दिन भी भूल गए वो ये कहा करते थे कि रेनकोट पहन के ना रहे। अरे भाई क्या डिसरिस्पेक्ट है? enough videos where your party president, your then party president Sonia Gandhi has disrespected the Prime Minister of India, Manmohan Singh, when she sidelined him. Or once she walked in and she sidelined him, you have the entitlement to go. यही सवाल है प्रियंका जी जो आपने बात कही है ना। मैं सर्वे के अगले सवाल पर जा रहा हूँ, लेकिन प्रियंका जी जो आपने बात कही है ना कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, यस दिस इज द प्रॉब्लम। हम सबको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और हमको सोचना होगा बोलते टाइम कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था, हम ये नहीं कह सकते पुअर थिंग। आप भाषण सुनने नहीं जा रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, सिनेमा में नहीं जा रहे। कोई गरिमा होती है? आप लोग ठीक है, मैं सर्वे के 2 सवाल आगे जो है वो लेता हूं। सर्वे के आगे के 2 सवाल ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं कि सोनिया गांधी के बयान को राष्ट्रपति भवन ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी ने इस पर कहा है कि कांग्रेस माफी मांगे। आपकी क्या राय है? 68% लोगों ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए, 8% लोग कह रहे हैं कि स्पीकर एक्शन ले, 21% लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ सियासत है और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय नहीं दी। इस सर्वे का अगला सवाल था कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहा। क्या बोरिंग और पुअर लेडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया, पुअर थिंग जैसे शब्दों का? 76% लोगों ने कहा हां, 14% लोगों ने ना में जवाब दिया और 10% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब आ रहा हूं प्रियंका जी मैं आपके पास, वही बात आपकी जहां से मैंने छोड़ी थी वहीं आपके पास आ रहा हूं।
आपने अभी कहा ना कि हम कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, तो यही बात शायद अगर बोलते हुए सोची होती तो शायद ये विवाद होता ही नहीं। एटलीस्ट आपको बात करते टाइम सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर। आज नहीं, सर्वोच्च संवैधानिक पद है और हम उसकी गरिमा को समझते हैं, इसलिए हमें ना बताइए कि हम किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते। अच्छा, मतलब बोरिंग भाषण कहना ठीक था। फिर आप ये भी कहेंगे राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण बोरिंग था, वो भी ठीक है। पहली बार थोड़ी कोई कह रहा है ये। आप पुराने भाषण निकाल कर देख लीजिए। आप जस्टिफाई कर रही हैं मतलब? भाषण एंटरटेनमेंट के लिए दिया जाता है क्या? मतलब स्पीच इज फॉर एंटरटेनमेंट फॉर कांग्रेस पीपल, दैट दे शुड बी एंटरटेन्ड कंटीन्यूअसली। लोगों का बड़ा सम्मान होता चला रहा था। स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इज द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री का अपमान होता है इस देश में। किसका अपमान नहीं किया? Is the speech of president meant to entertain Sonia Gandhi and Rahul Gandhi who were sitting in the crowd? Is it for entertainment basis that you found it boring? Were they there to entertain themselves that they found it boring? Was it a movie that you have? This discussion is of course making it. I would like to know when you said that boring is, it was boring to usme kya hai? Is for entertainment. We are what we are. No, you are saying it's boring. No. Then what is boring about it? Discussing today. What? No, I'm discussing the topic which is, I'm staying on the topic, you're shifting goalposts. What is the problem in this country? We are talking about. You are shifting goalposts, I'm staying on the topic. I would like to know, was the speech meant to entertain them? Yes or no, it's a simple answer. मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे हिंदी बता दीजिए कि पुअर लेडी का मतलब। हिंदी में बोलता हूँ, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए प्रेसिडेंट जी की, नहीं पुअर लेडी की बात नहीं, स्पीच की बात कर रहा हूँ। क्या छोटी सी चीज पूछ रही हूँ, आप ही ने अंग्रेजी लाई थी मैम, इसलिए मैं अंग्रेजी ले आया, वरना मैं हिंदी में बोलता। जब वो हिंदी में बोल रहे थे तो आप अंग्रेजी ले आए थे। गोलपोस्ट में शिफ्ट कीजिए। मुझे ये बताइए, चलिए आपको दूसरे सवाल पे हिंदी में पूछता हूँ, मतलब क्या होता है? मुझे आप पहले ये बताइए कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की स्पीच एंटरटेनमेंट के लिए थी क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए? क्या वो स्पीच उनको एंटरटेन करने के लिए करनी थी? आप पढ़े लिखे हैं, आप बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है? आपने अंग्रेजी पूछा था कि किसी को अंग्रेजी में हिंदी में समझ नहीं आती। यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, यू वांट टू। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, स्टॉप शिफ्टिंग गोलपोस्ट। डोंट शिफ्ट गोलपोस्ट प्रियंका, कम टू द टॉपिक। Don't shift goalposts. You are shifting goalposts from one to another because you don't have the answer. You know what he said is wrong. You know what he said should not be said. Nothing says. It is a wrong. You have said wrong. No, I'm not saying that it is a wrong thing. I'm saying you are shifting the goalposts because you know the topic is valid. You know you cannot defend it. You know what your party leaders did was wrong, and you don't have the answer or the gumption to apologize and say yes, they were wrong. It's as simple as that. इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम उसको एंटरटेन करेंगे। हमारे लिए अगर कोई चीज नहीं, तो अगर प्राइवेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कुछ बोलेंगे उसका ये मतलब नहीं कि राहुल गांधी को एंटरटेन करना है और उनको वो बोरिंग लग रहा है। कोई गलत नहीं है और ये कोई पहली बात दिक्कत यही है। ठीक है, मैं के पास चलूं। दिक्कत यही है, अब ये दिक्कत वही ना कि अब मीनिंग समझाना पड़ेगा सबको कि इसका ये मीनिंग, इसका वो मीनिंग। अपोजिशन तो बात देश की करता है ना, अपनी बात नहीं करने बैठा हुआ। आर के मिश्रा जी देश की जनता के लिए बात करने के लिए बैठे और देश की जनता के लिए आपके भाषणों में कुछ है? प्रियंका जी सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए बहन, सुन लीजिए। अब देखिए क्या है, इनको प्रधानमंत्री के भाषण भी बहुत ही बोरिंग लगते हैं। आज राष्ट्रपति पद के गरिमा को भी ख्याल नहीं रखते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण की इनको भी बोरिंग लगती है। और जब प्रधानमंत्री भाषण देते रहते हैं तो संसद छोड़ करके चले जाते हैं, संसद छोड़ करके चले जाते हैं। ये तो इनका चरित्र है। अरे भाई, अपने चरित्र के ऊपर में आप देश को क्यों झोंक रही है? आपके परिवार के, आपके नेता के परिवार के, आपके नेता के परिवार के सदस्य को केवल सम्मान चाहिए। आपको प्रधानमंत्री जी का भाषण बोरिंग लगता है, राष्ट्रपति जी के भाषण का बोरिंग लगता है आपको, तो आपको झूठ बोलते हैं। केवल आप ही भाषण देंगे तो देश की जनता अब क्या कहेगी? मुझे लगता है क्योंकि देश की जनता समझ गई है ये परिवार ही बोरिंग है, ये परिवार ही बोरिंग है, परिवार के सदस्य बोरिंग है। आप लोग झूठे हैं, निश्चित तौर पर देश की जनता भी इनको साइडलाइन कर चुकी है। देश की जनता इनको साइडलाइन कर चुकी है। प्रियंका जी अपनी स्थिति को पहचानिए, अपने स्थिति को पहचानिए। बहन प्रियंका, आप अपनी स्थिति को पहचानिए, अपने पार्टी की स्थिति को पहचानिए। आप किसी को सम्मान नहीं कर सकती, आप किसी को इज्जत नहीं दे सकती, आपको किसी के भाषण का आपको बोरिंग लगता है।
प्रधानमंत्री के भाषण को आप बोरिंग कहते हैं, संसद कि छोड़ करके चले जाते हैं। ये तरीका देश आपसे उठ चुका है, आपसे देश उठ चुका है, आपसे देश उठ चुका है प्रियंका जी। और कांग्रेस निश्चित तौर पर उठी हुई पार्टी है, उठी हुई पार्टी है। ऐसे पार्टी को साइडलाइन कर देना चाहिए और देश की जनता ने आपको साइडलाइन कर दिया है। रोहित जी, देश की जनता ने इनको साइडलाइन कर दिया है। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति का जो पद है उसका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपके नेता को माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, देखिए माफी की बात तो तब आएगी जब इस बात का एहसास होगा कि कुछ गलत किया है। और कांग्रेस को लगता है कि राष्ट्रपति के लिए पुअर थिंग शब्द के इस्तेमाल करना, उनके अभिभाषण के लिए बोरिंग शब्द जैसा इस्तेमाल करना, इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर रियलाइजेशन और माफी की तो बात ही नहीं है। आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।